Hello everyone, I'm Anshika Krishnatre and welcome to my YouTube channel Study 10th. I'm here with the second last video of Chemistry Chapter 2 Acids, Bases and Salts. So today we will be discussing about the various kinds of salts, what is a salt, and only the three types of salts today in this video, namely NaCl, sodium chloride, and which is used in our everyday life, as you may know, common salt, and caustic soda NaOH, and bleaching powder CaOCl2. So these three types of salts we will be discussing today, and in these we are going to discuss how are they formed, where are they obtained from, what is the chemical equation from their family, and what are its various types of uses. So without much ado, and I've given you just an overview of what we are going to do today. Let's get into the video. Before discussing the types of salts we are going to do today, let me discuss what is a salt. किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले you must know what the topic means and what the topic will be discussing. So at least you have a mind map in your mind that what are we going to do, so that you don't feel anything surprising or a new word. Also a mind map is much clear before starting anything so abruptly. So let's discuss what is a salt. So a salt is a combination of an anion of an acid and a cation of a base. Now what does this definition mean? आपसे पूछी नहीं जाएगी, but to have a basic understanding, अगर कुछ पूछ भी लिया या एक भी कंपाउंड को देखकर आपको पता लगाने को बोल दिया that what it is, so you must know. So अब cation और anion में तो usually सबको confusion रहती है. What's a cation, positive, negative, what's a anion, positive and negative charge. तो एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ आपको. अगर anion दिया हुआ है, हर अनायन और कैटायन का सेकेंड वर्ड देखिए. सेकेंड वर्ड देखने से आपको पता चल जाएगा. अनायन का सेकेंड वर्ड एन है. एन का मतलब नेगेटिव होता है. सो ओवरऑल अनायन पे चार्ज नेगेटिव होगा, which is the addition of electrons. एंड कैटायन का सेकेंड वर्ड ए है. ए का मतलब आप ले लीजिए पॉजिटिव चार्ज, सो विच इज़ द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, वेरी सिंपल. तो अनायन एसिड का और कैटायन बेस का. एंड नाउ लेट्स see this example which is potassium chloride. Now in this potassium chloride जो भी configuration होती है, इसमें first atom positive होता है और second जो atom का sign होता है वो negative होता है. तो अब ये positive sign है, so it's a cation and it's a cation of a base. तो अब हम इससे पता लगा सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल बना किससे होगा. तो ये बना होगा KOH प्लस HCl से बना होगा. ये ऐसा दिखता है यहाँ लिख के, बिकॉज cation which is potassium is of a base and chlorine of an anion is of an acid which is HCl. Okay, इतनी डिटेल में आपको जाना नहीं है. This is not a main discussion for today. So usually salts are prepared by the neutralization of an acid and a base. Salts neutralization of an acid and base से prepare होते हैं, जो हम पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं. What basically is a neutralization reaction? The combination of an acid and a base to form salt and water. Basic definition, very easy, have it in your mind. So that's a neutralization reaction. Now salt of a strong acid and a strong base, उसका pH जो होगा वो 7 होगा. And salt of a weak acid and strong base pH 7 से कम होगा. Strong acid और weak base pH 7 से कम होगा. एंड वीक एसिड एंड वीक बेस विल बी कंडक्टिंग अ pH टेस्ट से ही हमें पता लगेगा, बिकॉज इट कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंपाउंड्स, बिकॉज दोनों ही वीक हैं. तो यहाँ पे pH ज़्यादा होगा 7 से, यहाँ pH कम होगा 7 से, और बाय वीक एसिड और बेस में बाय कंडक्टिंग अ pH टेस्ट. ओके, तो आपको सॉल्ट समझ आ गया. सॉल्ट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. उसमें अनायन होता है एक एसिड का और कैटायन होता है एक बेस का. और नीचे वाली इन्फॉर्मेशन बस जस्ट आपकी अब पता हो पूछने के लिए, इट्स नेवर माइंड. नाउ अब हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट सॉल्ट. हमारा फर्स्ट सॉल्ट है NaCl, सोडियम क्लोराइड. आप देखने में तो कॉम्प्लेक्स वर्ड लग रहा है, लेकिन ये आप एवरी डे देखते हैं. एवरी डे, इवन आप एवरी डे ये कंज्यूम करते हैं. And it's a salt, means it's neutral in nature. तो क्योंकि आप ये एवरीडे देखते हैं और एवरीडे कंज्यूम करते हैं, it's sodium chloride. I hope you all are writing or what.
sodium chloride, also known as common as salt, crystalline substance. Okay, so I have written down all the points over here for NaCl. Now we will be discussing them one by one. NaCl जैसे मैंने आपको बताया is sodium chloride, commonly known as common salt. आपके घर में नमक के उससे. Okay, so NaCl is a colorless crystalline substance. आपके घर में जो नमक आता है वो नहीं, that's white color, but इसका जो raw form रहता है, जो सी से ऑब्टेन होता है, जो आपने गांधी मार्च में देखा उन्होंने सॉल्ट बनाया साबरमती लेक पे, तो वो सॉल्ट जो ऑब्टेन होता है वो एक कलरलेस क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है. फिर उसको आफ्टर वेरियस फॉर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग, सी से ऑब्टेन होता है. तो आफ्टर प्रोसेसिंग, बहुत सारी प्रोसेसेस के बाद वो एक वाइट सॉल्ट के फॉर्म में हमें मिलता है. वाइट सॉल्ट के फॉर्म में हमारे घर में आता है पैक्ड वाइट सॉल्ट, जिसमें आयोडीन भी रहता है, विच इज़ इसेंशियल फॉर आवर बॉडी. ओके, सो इट्स कलरलेस क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एंड इट्स सॉल्युबल एट रूम टेम्परेचर. एक ग्लास में पानी लिया, उसमें नमक डाल दिया और घुला दिया, सो इट्स सॉल्युबल एट रूम टेम्परेचर. उसके लिए टेम्परेचर कम करने की या बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो रूम टेम्परेचर पे ही सॉल्युबल है. एंड इट अब्जॉर्ब्स मॉइस्चर फ्रॉम एयर एंड बिकम्स वेट. अब इसका बेस्ट एग्जाम्पल इज़ वाइल कुकिंग. जब कुकिंग में आप बीच में रहते हैं और आप पानी के पहले, जब सब्ज़ी में या दाल में पानी डालते हैं तो उसके पहले आप नमक डालते हैं और बाद में टेस्ट अनुसार या स्वाद अनुसार नमक डालते हैं, बट पहले वो नमक इसलिए डालते हैं ताकि वो जो मॉइस्चर है आपके सराउंडिंग्स में वो नमक एब्जॉर्ब कर लेता है और सब्ज़ी को थोड़ा वेट बना देता है ताकि सब्ज़ी अच्छे से कुक हो जाए. इसलिए बिकॉज मिडल ऑफ द प्रोसेसिंग ऑफ कुकिंग के बीच में ही आप लोग नमक डालते हैं, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, क्योंकि नमक एब्जॉर्ब कर लेता है मॉइस्चर और सब्ज़ी को वेट बना लेता है. इसलिए फिर आप पानी डालते हैं ताकि पानी ज़्यादा ना डाल जाए, बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर दैट NaCl ऑलवेज गेन्स वाइल गेटिंग ड्यूरिंग हीट. ओके, एंड इट्स रिएक्शन विथ एसिड. वो NaCl को अगर आप एसिड के साथ रिएक्ट करोगे, यहाँ पे मैंने H2SO4 लिया तो क्या बनेगा, NaHSO4 एंड HCl बन जाएगा. HCl विच इज़ एन एसिड एंड NaHSO4 बन जाएगा. ऑन हीटिंग क्रैकलिंग साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड. हीटिंग पे क्रैकलिंग साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड होती है NaCl में. ओके, नाउ बेस्ट पार्ट इज़ इट्स यूजेस. ये ज़्यादा काम का नहीं है, यूजेस इसका बेस्ट पार्ट है. ये तो हमें पता ही है दैट इट्स एन essential component of a diet. Every day we use it in our cooking and हमारे घर पे, and used as a preservative in meat and fish. अगर आप पैक्ड मीट और फिश लेते हो तो उसमें हमेशा सॉल्ट स्प्रिंकल होता है ताकि वो उसे सड़ने से या ख़राब होने से बचाता है. जैसे अचार में प्रिजर्वेटिव ऑयल यूज़ होता है, वैसे ही पैक्ड चीज़ों में, इवन चिप्स में भी नमक का यूज़ कर जाता है. ऑल्दो नाइट्रोजन चिप्स में भी रहता है, लेकिन नमक भी रहता है उसमें ताकि प्रिजर्वेटिव की जैसे काम करे, मोस्टली मीट एंड फिश में. एंड इट्स अ मैन्युफैक्चरर ऑफ सोप ऑल्सो. जब आपका साबुन बनता है तब भी उसमें नमक यूज़ होता है. ऑल्सो रॉ मटीरियल्स फॉर वेरियस कंपाउंड्स. ये अब मेन फीचर है दैट एज अ रॉ मटीरियल फॉर वेरियस कंपाउंड्स NaCl उसमें यूज़ होता है. सो लेट्स जस्ट गेट इनटू कॉस्टिक सोडा NaOH. ओके पीपल, तो यहाँ कॉस्टिक सोडा विच इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में मैं लिख चुकी हूँ. नाउ लेट्स कंटिन्यू. कॉस्टिक सोडा, जैसे मैंने आपको बताया था, NaCl का यूजेस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस इज दैट इट हेल्प्स टू फॉर्म वेरियस अदर कंपाउंड्स. तो कॉस्टिक सोडा भी एक वो कंपाउंड है जो NaCl से बना है, बट बाय अ स्पेशल प्रोसेस कॉल्ड क्लोरएल्कली प्रोसेस. उसमें इन्वॉल्व होता है इलेक्ट्रोलिसिस. तो इलेक्ट्रोलिसिस का मैं आपको क्विकली एक लाइन में बता देती हूँ, बिकॉज इट्स अ वास्ट टॉपिक, बट समझने के लिए आपने कभी तो पढ़ा ही होगा. The process of sending electricity through electrolyte is called electrolysis. Process of sending electricity through electrolyte is called electrolysis. तो मतलब यहाँ पे दो electrolyte रखें, एनोड और कैथोड. कैथोड इज़ नेगेटिव एंड एनोड इज़ पॉजिटिव पोल्स. आप एक पोल्स की तरह टीच कर सकते हैं, और उनको कनेक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी पास की है. दो इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रिसिटी पास की है और इनको पानी में रखा है. इनको एक बीकर में पानी में डाला है और उस पानी में ब्राइन विच इज़ मैन्युफैक्चर्ड
कॉस्टिक सोडा इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन, और ब्राइन का नाम ही NaCl है। तो क्वेश्चंस में आपको NaCl नहीं लिखा आएगा, ब्राइन सोल्यूशन लिखा आएगा, तो आपको समझ जाना है दैट इट्स टॉकिंग अबाउट NaCl। तो एक बीकर में 2 इलेक्ट्रोलाइट डाल के इलेक्ट्रिसिटी से कंडक्ट कर आपने उसमें पानी डाला और फिर उसके अंदर ब्राइन सोल्यूशन डाल दिया। अब उसमें इलेक्ट्रिसिटी डालेंगे तो जैसे हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स में पढ़ा है कि when an acid is added into its water it dissociates into its रिस्पेक्टिव आयंस। तो NaCl को आपने पानी में डाला तो वो किस में डिसोसिएट हो जाएगा, Na+ और Cl- में, और उसमें वाटर भी रहेगा थोड़ा सा, तो वाटर H+ एंड OH- में हो जाएगा, जो कि एक बेस की प्रॉपर्टी है। तो अब यहाँ पे होगा इलेक्ट्रॉन रीअरेंजमेंट। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड, इलेक्ट्रॉन रीअरेंजमेंट होगा और Na और OH NaOH फॉर्म करेंगे एंड हाइड्रोजन एंड क्लोरीन रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल्स फॉर्म करेंगे H2 एंड Cl2। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई अबाउट कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा की इक्वेशन हो गई, और कॉस्टिक सोडा ये बन गया और 2 गैसेस निकल गई। 2 गैसेस को कंबाइन करके HCl भी बन सकता है बाय फर्दर प्रोसेसेस, लेकिन ये 2 गैसेस सेपरेटली ही निकलती हैं। इसमें क्लोरीन एनोड से निकलती है एंड हाइड्रोजन कैथोड से निकलती है, और जो NaOH है इस फॉर्म नियर कैथोड, क्योंकि वो एक सब्सटेंस होगा तो वो कैथोड के नीचे ही सेटल होके रह जाएगा। ओके, हमने इलेक्ट्रोलिसिस समझा, और इस प्रोसेस को, इस इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन के प्रोसेस को क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। ये क्वेश्चंस में बहुत आता है, व्हाट इज क्लोर एल्कली प्रोसेस नहीं होता, दैट व्हाट कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय क्लोर एल्कली प्रोसेस, ये MCQ टाइप हो सकता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड। अब क्लोर एल्कली ही क्यों नाम दिया, क्लोर बिकॉज क्लोरीन इज अ प्रोडक्ट एंड एल्कली इज NaOH। NaOH इज़ एन एल्कली, जो कि हमने बेस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। तो अब हम इसके यूजेस डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमें 3 प्रोडक्ट्स मिले हैं, हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड NaOH। तो अब हम इसके यूजेस डिस्कस करते हैं। हाइड्रोजन के क्या यूजेस हो सकते हैं, मैं क्विकली देखते हैं कि हम हाइड्रोजन कैसे यूज़ कर सकते हैं। हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स, जो आपके फर्टिलाइजर्स बनते हैं, हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स मिक्स्ड विथ, उसको लिक्विड ऑक्सीजन से मिक्स कर क्या फॉर्म कर सकता है, लिक्विड ऑक्सीजन से मिक्स करके रॉकेट फ्यूल बना सकता है। ठीक है, तो ये 2 ही बहुत ही बेसिक से यूजेस हैं हाइड्रोजन के। अब क्लोरीन कैन बी यूज्ड इन डिसइंफेक्टिंग वाटर। आप कभी स्विमिंग पूल में नहाए हैं? अगर स्विमिंग पूल, इफ़ यू गो एनी टाइम टू स्विमिंग पूल, यू विल स्मेल अ लिटिल वियर्ड स्मेल ओवर देयर। तो वो यूज्ड स्विमिंग पूल्स में, या अगर आपके यहाँ टंकी से पानी आता है तो उसमें भी कभी कभी हम बोलते हैं, कंप्लेन करते हैं दैट देयर इज अ वियर्ड स्मेल इन इट। उसमें क्लोरीन डालते हैं टू डिसइंफेक्ट इट, उसमें जर्म्स भगाने के लिए क्लोरीन डालते हैं। और भी क्लोरीन के बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे कि अब मैं क्या बताऊँ। क्लोरीन HCl में फॉर्म होता है, एक्सप्लोजिव्स कोई भी हो, क्लोरोफॉर्म जो फिल्मों में बताते हैं दैट लाइक हमने क्लोरोफॉर्म सुन लिया और आप बेहोश हो गए। एंड ऑल्सो ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो यूज इन ब्लीचिंग पाउडर। ओके, और ऑल्सो अगर और भी चीज़ें हैं तो PVC एंड शू लेसेस में यूज़ होता है हमारा क्लोरीन। ओके, अब हम आते हैं NaOH पे। NaOH आपका एक एल्कली है, जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। और NaOH किस किस चीज़ में काम आ सकता है, डिग्रीसिंग मेटल्स को ग्रीस करने के लिए। उसमें मेटल्स, अगर आप चेन, अपनी साइकिल की चेन का भी डलवाते हैं ना, तो उसमें ग्रीसिंग की ज़रूरत होती है, तो NaOH की ग्रीसिंग करते हैं उसमें। पेपर बनाने में, डाइज बनाने में, एंड पेट्रोल रिफाइन करने में, पेट्रोल रिफाइनिंग में, एंड सोप्स में,
वेरियस यूजेस हैं डिटर्जेंट्स में, तो आप कोई भी 2-3 याद कर सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यू में चांसेस बनते हैं आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएं 2-2 उसके, और आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन इट, तो आपको इनमें से कोई भी चीज़ आप याद कर सकते हैं, और 1 मार्कर में स्टेट भी कर सकते हैं और एमसीक्यू टाइप्स में भी आ सकता है। ओके, सो अब लास्ट हमारा कंपाउंड बचा है ब्लीचिंग पाउडर। लेट्स गो इनटू इट। Okay, so here we come to bleaching. So here we come to bleaching powder, which is calcium oxychloride, CaOCl2. रिमेंबर, अगर आपको मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस आते हैं जो कि इस एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चंस में आएंगे, सो यू नीड टू मैच द नेम ऑफ द कंपाउंड्स टू द chemical name of the compounds to their formula, chemical formula. इसलिए I am writing both of these things because both of these things are important. Okay, so now let's get to calcium oxychloride, which is bleaching powder. अब basically bleaching powder मैं आपको बता दूँ, सो हम टेक्सटाइल में अपने कॉटन को ब्लीच करने के लिए हमारे कपड़े ही ऐसे बनते हैं। ओके, सो ब्लीचिंग पाउडर वहाँ यूज़ होता है। अब व्हाट इज केमिकल फॉर्मूला, जो कि भी आपको आना चाहिए, वो भी मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। कैल्शियम hydroxide will react to chlorine to give all calcium oxychloride and water, and chlorine is produced in the process of NaOH. हम क्लोरीन कॉस्टिक सोडा की प्रोसेस से ले सकते हैं और ब्लीचिंग पाउडर बना सकते हैं। ओके, सो सोल्यूशन जब ये बनता है तो फिर भी मिल्की रहता है, बिकॉज द अनरिएक्टेड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो एज नोन एज लाइम वाटर, जो अनरिएक्टेड लाइम होती है वो स्टिल प्रेजेंट रहती है, इसलिए वो थोड़ा मिल्की सा अपीयर होता है हमें। और प्रॉपर्टीज़ इसकी, इट्स येलोइश वाइट इन कलर, येलो वाइट कलर में रहता है। आपने देखा होगा अगर आपके घर में यूज़ होता है, अगर कोई स्टेन निकालना है, वाइट क्लॉथ पे कोई स्टेन लग जाए तो उसमें ब्लीच पाउडर मिला के आप उसे निकाल देते, स्मॉल डिब्बी में आता है वो। एंड ऑल्सो ये उसकी इक्वेशन है, अगर वो एक्सपोज्ड टू एयर स्मेल्स लाइक क्लोरीन, अगर दिस कंपाउंड आपने एयर में रख दिया तो वो क्लोरीन जैसी खुशबू देगा, बिकॉज इट रिएक्ट्स विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट एंड क्लोरीन, और वो कड़क भी हो जाता है। अगर आप सर्फ का पैकेट खुला छोड़ दें कोई पे पैकेट, तो वो उसमें क्रिस्टल्स से बन जाते हैं, फिर आप उसको थोड़ा थोड़ा करके तोड़ो, कभी वो तोड़ते भी नहीं हैं और आप वॉशिंग मशीन में ऐसे ही डाल देते हैं। ओके, सो ये कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन बन जाता है। सोल्यूशन इन कोल्ड वाटर इज़ मिल्की, कोल्ड वाटर में अगर आप उसे मिलाओ तो वो मिल्की कलर देता है। और रिएक्शन विथ एसिड्स, जब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को एसिड्स के साथ मिक्स करते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड क्लोरीन एंड वाटर फॉर्म करता है, एंड अगर आप उसको H2SO4 के साथ मिक्स करोगे तो कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर एंड क्लोरीन फॉर्म करता है। ओके, नाउ सो लेट्स गेट ऑन टू द यूजेस। कैल्शियम सल्फेट एंड वाटर एंड क्लोरीन फॉर्म करता है। डूइंग द यूजेस ऑफ, यूज़ कहाँ होता है? यूज़ तो मैंने आपको बताया टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत यूज़ होता है। टू ब्लीच कॉटन, कॉटन ले लो, लेनिन ले लो, उसमें ब्लीच करने में बहुत यूज़ होता है। लॉन्ड्री मेकिंग वुल श्रिंक, okay, also oxidizing agent, in industries, and also as disinfecting drinking water. ओके, तो आपको इन सब चीज़ों में यूज़ होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री टू ब्लीच कॉटन एंड लिनन, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। लॉन्ड्री में आपके घर में कभी मेकिंग वुल श्रिंक, वुल को श्रिंकेबल बनाने के लिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इंडस्ट्रीज़ में और भी किसी कंपाउंड बनाने के लिए, ऑक्सीडाइज करने के लिए यूज़, एंड डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर में से जर्म्स निकालने के लिए, ऑल्सो फॉर मेकिंग वुड पल्प एंड पेपर, दोनों के लिए यूज़ होता है। लिख देती हूँ, वुड पल्प एंड पेपर के लिए भी यूज़ होता है।
ओके, सो आज हमने 3 कंपाउंड्स पढ़े हैं, NaCl, कॉस्टिक सोडा, NaOH, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, केमिकल फॉर्मूला के पास CaOCl2, इनकी प्रॉपर्टीज़, हाउ डू दे लुक, वेयर आर दे ऑब्टेन्ड फ्रॉम, व्हाट इज़ द केमिकल इक्वेशन एंड देयर यूजेस आप 2-3 याद कर सकते हैं, केमिकल इक्वेशन, केमिकल फॉर्मूला एंड द केमिकल नेम भी आपको याद करने ज़रूरी हैं, बिकॉज इस चैप्टर में प्रॉपर्टीज़ में से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके इन सॉल्ट्स के बनते हैं। आज 3 सॉल्ट्स डिस्कस किए। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग प्लास्टर ऑफ पेरिस and let me just check, plaster of Paris, baking soda, which is very important for 2-3 marks questions, and also we will be discussing washing soda. Okay, so these 3 compounds are left, and with their chemical formulas, their uses, their properties, what are they obtained from. Okay, and thank you all for watching this video. Comments are always appreciated, and have a nice day. Good night.